Hello friends, welcome back. This is Saurav once again. I am here with the interesting video of chemistry. Today we will talk about the chapter Atomic Structure of class 11th, the second chapter of class 11th Atomic Structure. Now today we will discuss about the topic quantum number and its types and their importance. Means what are quantum numbers, what are the types of quantum numbers, and what are the importance of quantum number. So let's begin. Quantum numbers. Quantum numbers are a set of numbers. Quantum numbers are a set of numbers which give the whole information about the address of electron present in an atom. Means that number, those number means a set of number. There are 4 quantum numbers. I am telling you. Quantum number are a set of 4 numbers. Means there are 4 numbers which completely explain the address of an electron present in an atom. Means as we know, according to Bohr model of atom, the electron are present around the nucleus. Means there is a nucleus in the center and electrons are revolving around the nucleus. The electrons are revolving in circular path which are known as orbits, और इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोहर मॉडल ऑफ एटम सेज देयर इज अ सेंटर पार्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट known as nucleus, and electrons are revolving around the nucleus in the circular path which are known as energy shells or orbits. Energy shells or orbits. So it is necessary to gather the information about the address of electron, where the electron reside in the atom. Mean which the electron is present in which shell, which subshell, which orbital. I will explain you by taking a common example in our daily life. Let us suppose I have to explain my address. Or your address. तो अगर हमें अपना एड्रेस एक्सप्लेन करना हो तो हम किस तरह से दिखाते हैं? सबसे पहले हम अपनी एक्सप्लेन करना हो एड्रेस तो हम दिखाते हैं, सबसे पहले जब भी बात करेंगे किस सिटी को बिलोंग करते हैं, किस सिटी को बिलोंग करते हैं. उसके बाद आ जाएगा किस सब सिटी या फिर किस तहसील को हम बिलोंग करते हैं. देयर आफ्टर कि विच विलेज डू वी बिलोंग टू, मतलब हम किस विलेज को बिलोंग करते हैं. उसके बाद आता है हाउस नंबर. अगर मैं कॉमन से एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अगर मेरे को अपना एड्रेस पता करना है तो किस तरह से मैं आपको, अगर मेरे को अपना एड्रेस आपको एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं. सबसे पहले आपको मैं सिटी बताऊंगा कि सिटी कौन सी है. तो लेट अस सपोज मैं आपको बोलता हूं मेरी सिटी जम्मू है. लेट अस सपोज मैं आपको सिटी बोलता हूं मेरी सिटी जम्मू है. तो आपको पता चल जाएगा कि जम्मू सिटी के अंदर ही ढूंढना है. उसके बाद आप ढूंढोगे तहसील कौन सी है, तो तहसील के अंदर फिर आप विलेज ढूंढोगे, विलेज के अंदर आप हाउस ढूंढोगे. दिस इज अ प्रोसीजर टू नो द एड्रेस ऑफ अ पर्सन और एनीथिंग. तो ऐसे ही क्वांटम नंबर्स होते हैं. क्वांटम नंबर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स. एक सेट होता है नंबर का जिससे हमें इलेक्ट्रॉन के पूरे एड्रेस का पता चलता है, थ्रू विच द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड. उन नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर क्या हो गया? अ सेट ऑफ नंबर विच कंप्लीटली एक्सप्लेन द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम. की एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कंप्लीट एड्रेस. मींस वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, शेल के कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, देन सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, देन ऑर्बिटल के अंदर इसकी स्पिन किस तरह से, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. तो क्वांटम नंबर क्या हो गया? अ सेट ऑफ नंबर which gives the complete information about the electron, about the address of an electron. Now there are 4 types of quantum numbers. First one is principal quantum number. As the word principal means main, then it is a main quantum number. Next one is azimuthal quantum number. It is also known as angular quantum number or subsidiary quantum number. Third one is magnetic quantum number, and last one is spin quantum number. Spin mean rotation. So
we will talk about the types of quantum number. First one is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. These are the 4 quantum numbers which helps to determine the complete address of an electron. Means through these 4 quantum numbers we can completely determine the address of the quantum number. कि क्वांटम नंबर अगर हमें इन 4 क्वांटम नंबर के बारे में पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉन का शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. तो लेट अस सपोज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. देखो किसी भी शेल में कोई भी शेल होगा, देखो बोहर ने बोला था न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको क्या बोलते हैं, शेल. अब किसी भी शेल के बीच में सब शेल होता है, सब शेल के बीच में ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, ऑर्बिटल में. बट ऑर्बिटल कहां पे है, शेल के अंदर. तो शेल कहां, सॉरी ऑर्बिटल कहां है, सब शेल के अंदर, और सब शेल कहां है, शेल के अंदर. तो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. इन अदर सेंस हम ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन सब शेल में प्रेजेंट है. ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट है. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, मैं अगर अपने विलेज का नाम बोलूं कि आई रिसाइड इन दिस विलेज, तो बोल सकता हूं. अगर मैं विलेज का नाम ना बोलना चाहूं, मैं सिटी का नाम बोलूं, दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस. तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो ऑर्बिटल किस सबशेल में प्रेजेंट है, और वो सबशेल किस शेल में प्रेजेंट है. तो यहां से आपको पता चल गया कि किसी भी शेल के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि शेल के अंदर सबशेल होगा, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एक शेल में डिफरेंट नंबर ऑफ सबशेल होते हैं, एक सबशेल में डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये आपको आगे डिस्कस करते हैं. So let's begin with quantum numbers and types of quantum numbers. So firstly, quantum number explain the shell, subshell, orbital to which an electron belong. मतलब शेल कौन से है, सबशेल कौन सा है, और ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एज वेल एज स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्या इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सेट ऑफ नंबर से मिलती है, और जो सेट ऑफ नंबर उनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. उनको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स. तो लेट्स बिगिन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है डिनोट करते हैं एन के साथ, स्मॉल एन. इट वॉज प्रपोज्ड बाय बोहर, क्योंकि बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया था. बोहर जो मॉडल में हमने स्टडी किया, तो इट इज डिनोटेड बाय एन. It determine the average distance between the nucleus and electron. Means अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ले रहा हूँ और इसके अराउंड एक शेल ले रहा हूँ, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये हमें ये बताता है कि न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है. एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन का कितना है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एटम का साइज भी बड़ा होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो एटम का साइज भी कम होगा. इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द साइज ऑफ एटम, कि इस क्वांटम नंबर से हमें किसी एटम का साइज पता चल जाता है कि वेदर द एटम इज स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज. अगर उसके बीच में शेल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे तो साइज बड़ा होगा, अगर शेल्स कम होंगे देन इट्स स्मॉलर इन साइज. नेक्स्ट वन इज It determine the energy of electron in an orbit. Orbit का मतलब होगा शेल, where electron is present. कि इसी क्वांटम नंबर से हमें किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता चलता है, किसी एक पर्टिकुलर शेल में कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो हमें पता चलता है. उसका फॉर्मूला होता है En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर. यूनिट्स हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल. तो कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी शेल में कैसे पता चल सकती है. वैल्यू पुट करेंगे n की. अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूं,
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6। और अगर मैं E2 की बात करता हूँ सेकेंड शेल में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम शेल का नंबर बढ़ाते जाएंगे, 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, 3 की वैल्यू पुट करूँगा, 4 की, तो जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वो बढ़ती जाएगी, जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है हायर एनर्जी लेवल में, या फिर हायर ऑर्बिट में, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हायर शेल में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, या फिर इन एन आप बोल सकते हो शेल, इन अ शेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला 2n²। मतलब कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसका फॉर्मूला है 2n²। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर देन इक्वल टू 2। अगर मैं सेकंड शेल की बात करता हूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर देन इट इक्वल टू 8। अगर 3 की बात करता हूं थर्ड शेल में इक्वल टू 18। तो ऐसा पता चलता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, जिनको आप मैजिक नंबर बोलते थे 10th क्लास में। तो यहां से हमें यह पता चल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। फिर हमें यह पता चल गया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यह भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी एक शेल में। नेक्स्ट वन, नो एनर्जी शेल इन एन एटम कैन पोजेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी शेल में, अब जैसे आप 4 की बात करो फोर्थ शेल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे देन इक्वल टू 32। अगर आप 5 की बात करते हो देन इक्वल टू 50। तो कहता है ये एक लिमिटिंग केस बना दिया इसने कि किसी भी शेल में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। नेक्स्ट वन, इस क्वांटम नंबर से हमें यह पता चलता है कि ऑर्बिट कौन सा है, क्या के शेल है, एल शेल है, एम या फिर एन। तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि शेल क्या, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, के शेल, एल शेल, एम शेल या फिर एन शेल। नेक्स्ट वन, एंगुलर क्वांटम नंबर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय दिस क्वांटम नंबर। जो एंगुलर क्वांटम नंबर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसकी वैल्यू भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही निकाल सकते हैं। लास्ट वन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किसी भी शेल में निकालनी है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ हमें बताएगा शेल की इंफॉर्मेशन, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, किसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी किसी शेल में। ये सारा का सारा हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस शेल के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देगा दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, उस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर होगी, उस शेल को डिनोट किससे करते हैं। ये सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। नेक्स्ट वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था वो डिस्कवर किया था, जब प्रपोज किया था बोहर ने, लेकिन एजीम्यूथल जो क्वांटम नंबर है उसको जो प्रपोज किया दैट वाज सोमरफील्ड। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल के साथ। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको हम एन के साथ डिनोट करते हैं, और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसको हम एल के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल एल के साथ। तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ सब शेल आर सब लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कि शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, ये हमें कौन बताएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ये हमें ये बताएगा कि किसी भी हाउ मेनी सब शेल विल बी प्रेजेंट इन अ शेल, कि कितने सब शेल हो सकते हैं किसी शेल में और इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इट टेल्स द शेप ऑफ सब शेल, यहां से हमें किसी सब शेल की शेप के बारे में भी पता चलता है। और इसमें जो सब शेल को
डिनोट, देखो शेल को डिनोट करते हैं KLMN, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल N एंड N के साथ, और यहां पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं SPDF। SPDF, S मीन्स स्फेरिकल, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड एंड F मीन्स फंडामेंटल। तो S की एनर्जी सबसे कम होती है, P सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, D में उससे ज़्यादा और F में सबसे ज़्यादा। तो ये था जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें किसी सबशेल के बारे। अब देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल की इंफॉर्मेशन देगा कि सबशेल की शेप कैसी होगी, सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सबशेल की एनर्जी किस तरह से होगी। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ L ऑलवेज डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि जो सबशेल जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, L पे। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1। कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को पता करना है कि फर्स्ट शेल में कितने सबशेल हैं, फर्स्ट शेल का मतलब हो गया K शेल, इसके लिए n की वैल्यू होती है 1, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to n-1, 0 to n-1 का मतलब हो गया n1 है तो 0 to 1-1, 1-1 0। इसका कहने का मतलब हो गया K शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, K शेल में एक ही सबशेल होता है। अगर मैं L की बात करता हूं, L सबशेल की बात करते हैं, अगर हम L सबशेल में n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 2 होती है, तो यहां पे स्मॉल l जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to 2-1। तो कहने का मतलब हो गया कि यहां पे जो सबशेल कितने होंगे 0 और 1। इसका मतलब सेकंड शेल में 2 सबशेल होंगे, सेकंड शेल में 2 सबशेल। ऐसे ही अगर आप थर्ड शेल की बात करते हो वहां पे 3 सबशेल होंगे, अगर आप फोर्थ शेल की बात करते हो वहां पे 4 सबशेल होंगे। तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि किसी भी शेल में कितने सबशेल होंगे वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 to n-1। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 0। अब देखो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब हुआ कि अब सबशेल को नाम कैसे देंगे। देखो जैसे वहां पे हम n की वैल्यू 1 आ रही तो K शेल लेते हैं, 2 आएगी तो L शेल लेते हैं, 3 आएगी M शेल लेते हैं, 4 आएगी N शेल लेते हैं। सेम इज द केस, अगर यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है तो सबशेल को नाम देते हैं S सबशेल, अगर 1 आती है तो इसको नाम देंगे P सबशेल, अगर 2 आएगी देन इट इज D सबशेल, एंड अगर 3 आती है देन इट इज F सबशेल। तो किसी भी सबशेल का पता कैसे चलेगा, हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कहाँ से आएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और जब हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी, अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है देन S सबशेल, अगर 1 होगी देन P सबशेल, अगर 2 होगी D सबशेल, एंड अगर 3 होगी देन F सबशेल। अगर मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि किसी n शेल में कितने सबशेल होंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि n के लिए क्या है, n स्मॉल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। इसका मतलब L की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to 4-1, 0 to 4-1, तो ये कितनी आ जाएगी 0 1 2 3। इसका मतलब फोर्थ शेल में S सबशेल भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। तो नाम कैसे देंगे, 4S भी होगा, 4P भी होगा, 4D भी होगा एंड 4F भी होगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि फोर्थ शेल में 4 सबशेल होंगे जिनका नाम आएगा 4S, 4P, 4D, 4F। और अगर आप थर्ड शेल की बात करते हो वहां पे 3 आएंगे, तो वहां पे आप नाम देख सकते हो 3S, 3P, 3D। तो इस क्वांटम नंबर से हमें यह भी पता चलता है किसी भी, क्योंकि इसका नाम क्या था, एंगुलर क्वांटम नंबर, तो ये डिस्क्राइब करता है एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे निकाल सकते हैं, रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू h/2π, h/2π। अगर मैं S सबशेल में किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो L की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन यहाँ पे 0, 0+1 देन 1 इंटू h/2π। मतलब S सबशेल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज h/2π। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी सबशेल में, उसका फार्मूला है 2 × 2l+1।
लेट अस सपोज एस सबशेल में मेरे को पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर दो। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0 प्लस 1 देन 2 इंटू 0 प्लस 1 देन इक्वल टू 2। इसका मतलब एस सबशेल में 2 होंगे। और अगर मैंने एफ सबशेल की बात करनी है, 2 इंटू एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14। तो एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे डी के लिए 10 होंगे और पी के लिए 6 होंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1। नेक्स्ट वन, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ n, किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ सबशेल किस पे डिपेंड करेंगे, मतलब किसी शेल में सबशेल कितने होंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन n। मतलब किसी भी शेल में सबशेल कितने होंगे दैट डिपेंड अपॉन n। मतलब जितनी n की वैल्यू होगी इतने ही सबशेल होंगे। लेट अस सपोज मैं बात करता हूं थर्ड शेल में, थर्ड शेल का मतलब हो गया m शेल में कितने सबशेल होंगे, तो वैल्यू आ जाएगी n, जो वैल्यू आएगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की दैट इक्वल टू 0 टू 3 माइनस 1 दैट इक्वल टू 0 1 2। तो 3 सबशेल आएंगे। किसी भी शेल में कितने सबशेल होंगे वो डिपेंड करेगा उस शेल का नंबर। अगर फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सबशेल होगा, अगर सेकंड शेल है उसमें 2 सबशेल होंगे, अगर थर्ड शेल है उसमें 3 सबशेल होंगे, अगर फोर्थ है तो उसमें 4 सबशेल होंगे। तो ये था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि सबशेल के बारे में। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसने हमें बताया किसके बारे में, शेल के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया, जीमन ने। किसने प्रपोज किया, जीमन में। जीमन जो था, जीमन का इफेक्ट भी आप पढ़ोगे आगे। तो इट गिव्स द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, कि किसी सबशेल में ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, कि क्या एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये हमें ओरिएंटेशन बताता है किसी भी सबशेल में कितनी टाइप की ओरिएंटेशन होगी। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -l टू +l। मतलब कहने का मतलब हो गया इसकी वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो डिपेंड किस पे कर रही है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वो डिपेंड कर रहा था प्रिंसिपल पे, और मैग्नेटिक डिपेंड कर रहा है एजीम्यूथल पे। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो इसकी वैल्यू होती है -l टू +l। नेक्स्ट, इट टेल्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये हमें बताता है स्पेक्ट्रल लाइन कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिट होती हैं, जिसको हम जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। जीमैन इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, दैट्स वाई बोहर का जो लिमिटेशन हम लिखते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जीमैन इफेक्ट। नेक्स्ट वन, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, किसी भी शेल के लिए जो टोटल वैल्यूज होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो कितनी होगी, n²। मतलब टोटल वैल्यूज कितनी होगी, n²। लेट अस सपोज मैं बात करता हूं L शेल की, L शेल का मतलब हो गया n = 2। सेकेंड शेल की बात करता हूं, तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, इसमें ओरिएंटेशन कितनी होगी, दैट इज n²। n² का मतलब हो गया इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 4। तो नाम कैसे देंगे, इसमें नाम आ जाएगा 2s 2p। 2p सबशेल है, तो सबशेल में ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, p 3 टाइप का होता है, तो देन इट इज 4। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दैट इज n², दैट इज n²। तो हम किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है m = 2l + 1, m = -l टू +l। जैसे मैं बात कर रहा हूं p सबशेल की बात कर रहा हूं, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 0 +1, क्योंकि -l से लेकर +l जाना है, तो 3 वैल्यू आ गई। इसका कहने का मतलब हुआ p सबशेल जो है उसके बीच में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, px py एंड pz, px py एंड pz। तो किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसका फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, -l टू +l, -l टू
प्लस एल, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी शेल में कितने सबशेल होंगे, किसी शेल में कितने सबशेल हैं, दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होगी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई -1 0 +1, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे 3, तो तीनों की एनर्जी बराबर होगी। अगर मैं डी सबशेल की बात करता हूं, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो एम की वैल्यू आ जाएगी -2 -1 0 +1 +2, तो इसके बीच में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, तो कहने का मतलब हो गया डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे। तो यहां से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2l+1। 2l+1 का मतलब हो गया कि कितने, अगर l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे यहाँ पे 2 × 1 + 1 मतलब 3। अगर l की वैल्यू 2 है तो आ जाएगा 2 × 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। अगर 3 है 2 × 3 + 1 दैट इक्वल टू 7। तो इसका कहने का मतलब होगा 1 कब होगा p के लिए, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे और f सबशेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो यहां से हमें वेरीफाई हो गया कि जो हमें शेल की इंफॉर्मेशन देगा दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी शेल की इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और शेल को कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। वहां से उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि सब शेल के बारे में, किसी शेल में कितने सब शेल होंगे, वो कितने होंगे जितना उस शेल का नंबर है। अगर फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल होगा, अगर सेकंड शेल है उसमें 2 ही सब शेल होंगे, अगर थर्ड शेल है उसमें 3 ही सब शेल होंगे। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो उसका फार्मूला है m = -L2 + L, -L2 + L। तो अगर p सबशेल की बात करते हैं, p सबशेल के लिए l की वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1 0 +1, तो वहां से इसकी 3 वैल्यू आ जाएंगी। कहने का मतलब हुआ कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, ऐसे ही f सबशेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल = 0, बिकॉज s सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे 2 × 0 + 1, तो इसका मतलब हो गया कि एक ही ऑर्बिटल होगा। तो कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं होगा जिसकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि है ही एक है। तो नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होगा ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, जिनकी एनर्जी बराबर है। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटम नंबर। आपने अभी देखा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड कर रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड कर रहा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। कहने का मतलब ये हो गया ये तीनों क्वांटम नंबर आपस में डिपेंडेंट हैं, बट स्पिन क्वांटम नंबर ये डिपेंड नहीं करता किसी भी अदर क्वांटम नंबर पे। इसको जो डिस्कवर किया था, इसको जो प्रपोज किया था, इसके 2 पर्सन थे, दैट वाज गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक। गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक, तो ये 2 पर्सन थे जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर को दिया। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s के साथ। ये हमें सिर्फ बताता है कि क्या किसी, लेट अस सपोज ये ऑर्बिटल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की फॉर्म में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया घड़ी से उल्टी फॉर्म में घूम रहा है। तो अगर ये लेफ्ट टू राइट घूम रहा है देन इट इज क्लॉकवाइज, अगर राइट टू लेफ्ट घूम रहा है देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसा भी देख सकते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की फॉर्म ले लो, अगर क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है दैट इट इज क्लॉकवाइज, एंड अदर इन एंटी क्लॉकवाइज हो गया जब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमे। तो इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 2 वैल्यू होती है, +1/2 एंड -1/2। +1/2 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, और -1/2 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, की अपने एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ से स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये थे क्वांटम नंबर, कि क्वांटम नंबर में क्या होता है कि ये ऐसे नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन की फुल डिटेल हमें बता दें।
जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये सारा का सारा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा कि शेल में से किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसमें उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट वन एंगुलर क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है कि सब शेल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहां से स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताएगा कि इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो होल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की हमें कौन देता है, क्वांटम नंबर्स। तो हमें यह पता होना चाहिए कि देखो अगर मैं बात करता हूं, आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन का फुल एड्रेस जो है वो इन्हीं 4 क्वांटम नंबर की वजह से बन सकता है। जैसे अगर मैं अपना एड्रेस, अगर मैंने अपना एड्रेस को एक्सप्लेन करना हो तो वो कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, पहले मैं अपनी सिटी लिखूंगा, फिर जैसे आप एक कॉमन से एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप अपना पोस्टल एड्रेस होता है किस तरह से लिखते हैं, आप अपना नाम लिखते हैं, फिर फादर नेम लिखते हैं, देन विलेज, देन टाउन, या फिर उसके बाद आप लिखते हो तहसील, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट। तो इसी के हिसाब से अगर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा स्टेट कौन सी है, मीन्स शेल कौन सा है, उसके बाद मैं स्टेट में ढूंढूंगा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मतलब शेल के अंदर सब शेल कौन सा है, और उसके अंदर मैं ढूंढूंगा तहसील, मीन्स शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और उसके बाद देखूंगा वेदर इट इज मेल और फीमेल, मीन्स क्या ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप इसको इजिली, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट एड्रेस है, वो आप इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर जो हैं ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का फुल एड्रेस जो नंबर आपको डिस्क्राइब करते हैं दैट इज क्वांटम नंबर्स। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हम स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला है रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1 h/2π। ये होता है स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। जो हमने एंगुलर मोमेंटम में निकाला था दैट वाज एंगुलर क्वांटम नंबर, वहां पे हम स्पिन की वैल्यू की जगह क्या ले रहे थे, l की वैल्यू, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम, मैक्सिमम स्पिन कितनी हो सकती है एटम की, 1/2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एटम की इतनी मैक्सिमम स्पिन हो सकती है। मतलब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो स्पिन 1/2 होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 इंटू 1/2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 इंटू 1/2। तो ऐसा होगा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इतनी ही स्पिन की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, लेट अस सपोज किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो क्या होगा, इसकी स्पिन पॉजिटिव होगी, दूसरे की -1/2, तो क्या होगा 0। इसलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है दैट इज 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होती है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो उसकी स्पिन 0 हो जाती है। तो कहता स्पिन दिस क्वांटम नंबर इज रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन, इज नॉट द रिजल्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो 3 क्वांटम नंबर हैं n, l, m, उनकी वैल्यू निकली होती है। लेकिन s जो है स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट, इसकी वैल्यू जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो यहां तक ये था स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको यही बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिटल में कैसी स्पिन है, क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। तो ये था आपका क्वांटम नंबर के बारे में। तो यहाँ पे हमने पढ़े क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वन वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल की इंफॉर्मेशन देगा कि शेल का फीचर कैसा है, शेल का नंबर क्या होगा, शेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसी को एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं या फिर सब्सिडायरी। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल,
या फिर सब लेवल एनर्जी लेवल के बीच में जो सब एनर्जी लेवल है, या फिर शेल के अंदर जिसको सब शेल बोलते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन देगा दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये हमें इस बारे में बताएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होगा वो हमें सब शेल के बारे में बताएगा कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका नाम क्या है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ये सारा का सारा हमें जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा। नेक्स्ट वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन सबशेल की किस तरह से है, क्या वो एक्स डायरेक्शन में है, क्या वाई डायरेक्शन में है, या फिर जेड डायरेक्शन में है, या फिर इंटर एक्सियल है, मतलब एक्सिस के बीच में है, अलोंग द एक्सिस है या एक्सिस के बीच में है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा सब जो ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये भी हमें ये बताएगा, कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू जो है वो बाकी क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती, ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज इन अ ऑर्बिटल। तो अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये था जो था स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो यहाँ पे आप क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैं एक ट्यूबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट शेल है के सब शेल की, के शेल की बात कर रहे हैं। के शेल में एल की वैल्यू कितनी होगी 1, जो एन एल की वैल्यू होती है वो होती है 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब होगा एन कितना 1, 0 to 1-1, तो एल की वैल्यू होगी 0, एल की वैल्यू होगी 0, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो कहने का मतलब हो गया एल की वैल्यू 0 है तो कहना मतलब एस सब शेल। तो कहने का मतलब ये है फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होगा जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट शेल में एस सब शेल ही होगा, तो इसका नाम आ गया 1s, इसका नाम आ गया 1s। तो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ओनली 1। अगर मैं सेकंड शेल की बात करता हूं, अगर मैं सेकंड शेल की बात करता हूं, सेकंड शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 वैल्यू आती हैं 0 and 1। मीन 0 का मतलब होगा एस एंड 1 का मतलब होगा पी। तो इस शेल में 2 सब शेल होंगे, 1 इज 2s, नेक्स्ट 1 इज 2p। डिजाइनेट कर रहे हैं क्योंकि सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगे, एक का नाम 2s है, दूसरे का 2p। अब s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्यों? क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, 0 + 1, तो 3 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे 3, तो 3 ऑर्बिटल होंगे, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल हैं, 3 और 1 s ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे सेकंड शेल में 4। तो वही फार्मूला लगाया n²। ऐसे ही अगर हम फोर्थ शेल की बात करते हैं, फोर्थ शेल की बात करें तो n = 4 है, तो l की वैल्यू 4 वैल्यू आएंगी 0, 1, 2, 3। 0 होगा तो s, 1 होगा p, 2 होगा d, 3 होगा f, तो 4s, 4p, 4d, 4f। अगर 4s की बात करें, s सब शेल 1 ही होता है, p सब शेल 3 होते हैं, d 5 होते हैं, f 7 होते हैं। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 7 f हो जाएंगे, d 5 हो जाएंगे, 3 p और 1 s। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। तो 16 ऑर्बिटल्स फोर्थ शेल में प्रेजेंट होंगे। इसलिए फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32, बिकॉज एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। फर्स्ट शेल में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। सेकंड शेल में बात करें ऑर्बिटल कितने हैं 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8। थर्ड शेल की बात करें तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 9 और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 18। तो जो मैजिक नंबर आप स्टडी करके आए हो, तो यहीं से मैजिक नंबर निकलते हैं कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, सेकंड शेल में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। एंड 32 से ज़्यादा कभी भी किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी शेल में नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और कैसे ऑर्बिटल को नाम देना। 1s लिख रहे हैं, इसका मतलब शेल इसका फर्स्ट है, सब शेल कौन सा है s, इसलिए 1s। यहाँ पे 4s लिख रहे हैं, इसका मतलब शेल का नंबर 4 है, सब शेल कौन सा है s सब शेल। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4s कभी भी आपके सामने 4s लिखा होगा, तो अगर आपको बोला जाए 4s के लिए आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे आ जाएगा 4 और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर s सब शेल है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसी भी सब शेल के
अगर आपको ऑर्बिटल दिया होगा। तो ये था क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो दैट मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दें। तो थैंक्स। और अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें cam.saurabh Gupta। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें।